whatsoever. So they should understand what is the weakness, but then they should learn how to make the person know what the weakness is exactly in a very clever manner, not just belittle them or put them into shame in front of something. When that happens, most of the time the divorce will take place. So instead of that, if they can highlight the weakness, and that person should understand, yes, this is my weakness, so I must rectify it. So that person should bring about a change gradually. When that change comes in, automatically the other person will definitely change. So then they understand each other, they can continue. So if the family can support them, I don't think divorce can ever take place. And that's Yes. what I feel. I Yes, don't know. exactly. So Because marriage is not only two persons. Marriage is a combination of two families, two yes, religions, yes, and two so rituals. that's So true. Actually, the third party intrusion is the problem, no? Because people are not, exactly. they are not All right. supporting much. They are always, making them apart. They Yeah, don't that's understand that's what I'm telling you, that Yes, humans yes. must understand Yeah, and yeah. in a very clever manner talk about it and bring about a change. So every individual should learn how to sacrifice, how to bring about a change within themselves. No human personality can ever be perfect, and it can be a standstill thing. There has to be a kind of a change and development taking place for So a we have, positive. yes, we have to change the pattern, because the mother-in-laws, they may have suffered, but they don't want their daughter-in-laws to suffer, no, in that manner. So when they break the pattern, no, that okay, now we are doing something different, we are giving you freedom, you do whatever you want to, then that pattern breaks, and then they feel happy, there's something is changed. Now sometimes they think that we have suffered, so even they should be like that only. Then the process continues. Yeah, so that change definitely will have to come about, and then everybody can lead a very happy life. Yes, yes. Also, it is not what is happening around and what others are saying and doing. It is our reaction which makes the difference. Yes, Yes, you are right. So, any so other many point? points. Any other So many point? points. You get so many points to add on your article, no? Yes, you have. Yes, you have. That's why I told. That's why I told in previous video. Please don't share your points, otherwise it will be copied. So, any other point somebody wants to share or wants to ask or wants? सर अरुणा मैम anything? ने हैंड रेज किया हुआ है काफी वो देर से। हैंड रेज उनका गलती से हो गया है वो। अच्छा, अच्छा। एक्चुअली वो आशीर्वाद दे रहे हैं। एक्चुअली वो हम सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं परमानेंट। अच्छा ओके ओके, मुझे लगा था कुछ पूछना होगा। नहीं पूछना नहीं है, वो शुरू से आशीर्वाद दे रही है और हम लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। So sweet. हाँ जी, You can go to the reactions and lower down your hand. सपना जी आप बोलिए ना। सपना Yes, जी sir. आप बोलिए ना। Yeah. please. Yes, sir. So I completed writing the article last week. Means in a way it is a rough this thing draft, but complete kiya. So I just wanted to share my writing experience with everyone over here. Like what did I face while putting down the thoughts what were there in my mind about marriage, and then putting them into good words, and then synchronizing it according to the events happened in life. So it was a wonderful experience, really a very wonderful experience. So those who have not yet started writing, I think one should start writing it, so in order to get that wonderful experience कि कितना मजा आता है when you put down your positive feelings भी आएगी, negative feelings भी आएगी, and you will also get a gist of your relationship. I think so. I got the gist of my relationship. There were certain regrets, there were certain advantages, like when I was into this marriage, 25 years ago. So it gave me a gist somewhere when I started writing the points, and finally when I completed my entire article. And it made me feel very happy to express whatever was there, whatever I wrote in my article. And
the regrets also got released, you know, मतलब जो भी negative था ना वो एकदम easily release हो गया body से. Means I could feel those releases happening when I just finished the article, like ended the article. There were a lot of releases into physical body, in my physical body. I think everyone would be able to feel the same thing, because somewhere we are holding upon certain things which wouldn't have mattered a lot. I mean, those negative things actually हमने उनको बहुत deeply store करके रख दिया होता है. But when I wrote it, basically I found it that those were not a very major problem of the life which I couldn't solve, or which I should not keep on regretting on, So अभी 25 years थोड़ा थोड़ा कहीं पे जो भी था, regrets था, जो भी ऐसे लग रहा था कि नहीं लाइफ अच्छे से नहीं चली या कुछ भी ऐसे था, वो बहुत पॉजिटिवली आ गया है बुक के अंदर, मेरे आर्टिकल के अंदर बहुत पॉजिटिवली मैंने उसको प्लेस किया, और बहुत मीन्स एक अच्छे एटीट्यूड के साथ प्लेस किया और कॉन्फिडेंटली प्लेस किया कि यस दिस वुड बी व्हाट एक्चुअली मेनी यंगस्टर्स इन टुडेज ये जेनजी वर्ल्ड जो बोलते हैं ना, जेनजी जनरेशन, उसमें आज ये बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है. स्पेशली आई फील के गर्ल चाइल्ड, दे आर more that we don't want to marry, हम करियर खराब हो जाएगा या ये वो, बहुत सारे ऐसे थॉट प्रोसेसेस उनके होते हैं. तो वो हम एक स्ट्रॉन्ग मैसेज वहां पे भी क्रिएट कर सकते हैं थ्रू अवर एक्सपीरियंसेस. तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा. आई होप एवरीवन राइट्स अबाउट their story and share their experiences. Thank you. इतनी अच्छी बात है. आप देखिए, Thank you, Manish. आपने अपना लिखा और मतलब एक तरह से कैसेट रिवाइंड हो गई. अगर आप देखो, जैसे आप बता रहे हो 25 साल के आपने जर्नी को सोचा, फिर उसके बाद Yes. आपने कहते हैं कलम को कुल्हाड़ा पेपर पर दे मारा. Yes. तो दिल के जो मतलब अरमान थे, जो आप कह सकते हो, वो कहाँ पे गलतियां हुई या कहाँ पर नहीं हुई, कहाँ पर हम ठीक थे, कहाँ पर हम गलत थे, वो सब जब Yes. आपने पुराने जो आपका 25 साल पहले की आपकी मेंटेलिटी सोचो और आज की मैच्योरिटी सोचो, आपको Exactly. महसूस Yeah. होगा एक्चुअली कि व्हाट वी हैव डन, व्हाट शुड वी हैव टू डू. Right. उस कंडीशन पर आप देखोगे तो सही बात है. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने बताया कि आपने पहली बार आपने बोला है इस तरह से. सभी अभी Yeah. करीब 8-10 मेरे पास आर्टिकल्स आ चुके हैं, और बहुत अच्छी बात है. अगर आप लोग इस तरीके से अपने दिल से लिखते हैं तो वास्तव में ये चीज फील होगी. और ये लास्ट किताब में कानन जॉली ने भी पेश किया था और लिखा था, बहुत बोला था. लास्ट वाली बुक में कानन जॉली ऑथर थी, और उन्होंने भी बताया था कि किस तरह से लिखा है. दिव्या जी ने महसूस करवाया था, उमामा जी ने बोला था. एक्चुअली जब आप लिखते हैं ना, तो आपका माइंड आपके सोल से कनेक्ट होता है, आपका कलम आपके माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होते हैं. हाँ, तो मैक्सिमम लोग ग्राफोलॉजिस्ट हैं, बोलने की जरूरत ही नहीं है. Actually, ठीक. तो जब आपका सबकॉन्शियस माइंड जब आपके कलम से कनेक्ट होगा ना, तो जो दिल की भावना है जो पेपर पर आएगी, और जो बाहर के लोग पढ़ेंगे उन्हें रियलिटी समझ में आएगी. रियलिटी, ये कोई ड्रामा नहीं है, कोई फिल्म की कहानी नहीं है लिखी हुई, या जिसे बोलते हैं ना कि एक तरह से फिक्शन, उपन्यास, नॉवेल नहीं है. ये हम लोगों के द्वारा रची हुई हमारी सच्ची घटना, जो हमने फेस की है, जो हमने अपनी शादी की यात्रा में जो हमने सफर किया है, या जो हमने आनंद लिया है, जो खट्टे मीठे पलों का हमने स्वाद चखा है, हम वो लिख रहे हैं इसमें. तो एक और एक, एक दो 8-10 नहीं, 108 ऑथर्स, 108 ओपिनियंस, 108 जर्नी, 108 कहानियां, सच्ची कहानियां. सोचो कितना बेस्ट, मतलब अपने आप में ही सोच के बोल के गूज बम्स आ रहे हैं. आपने लिखने के बाद महसूस किया है. मैं इस बात को रोज महसूस करता हूँ कि रोज 4 से 6 कॉल्स अटेंड करता हूँ. बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है. बड़ा अच्छा लगता है. बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा कदम है. अभी तक इन टॉपिक्स पर लिटरेचर ज्यादा अवेलेबल नहीं है पढ़ने के लिए. इवन सुराना जी ने फर्स्ट टाइम जब बात करी थी तो उन्होंने भी बात बोली थी. वो काउंसलर हैं, बहुत अच्छे और बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है. उन्होंने भी बोला था ये बात. सही कह रहा हूँ ना सुराना जी? आपने भी बात बोली थी कि बहुत अच्छा टॉपिक है.
एक सज्जन यहाँ पर अभी है नहीं, ज्वाइन नहीं करना, तो कहता है टॉपिक लाते कहाँ से हो। उनका सेम यही क्वेश्चन था पहले कॉल, टॉपिक लाते कहाँ से हो। हमें सोचना पड़ रहा है कि हम क्या लिखें और क्या ना लिखें। फिर उसके बाद शब्दों की लिमिट हो जाती है, किताब को इतना मोटा नहीं कर सकते, है ना। हाँ जी, कोई सौरभ, करना चाहेगा? दूसरी बात ये है ना, दूसरी जी। one more thing what I want to share is like I am not a writer. I have never written before this. So it was like, knowing your own potentials. Yeah, I was always inclined, means I always had that thought, and I always had that complex also, like खुद ही से एक बोलते ना, ये रहता था कि you can't write, why can't you write, you should write something. तो वो भी मेरा एक जो लाइफ, आई डोंट एक नो, डर सब हट कहीं गया, पे मैंने, एक डर हाँ, हट डर गया, बोलो, भोपाल। या एक पोटेंशियल अपना खुद का बाहर आ गया है कि यस यू कैन देखिए, राइट. इसलिए हमने शुरू से बोला था, लास्ट पॉडकास्ट चल रहे थे, रेनू होस्ट कर रही थी पॉडकास्ट सारे पुरानी किताब के। जो लोग ऑथर्स हैं उनके हम पॉडकास्ट भी करेंगे आगे, जो लोग इस बुक के लिए लिख रहे हैं। हमारे पुराने पॉडकास्ट भी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, अगर आप चेक करेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है, वी आर वेलकमिंग द न्यू ऑथर्स, जो लिखना चाहते हैं। ऑथर का मतलब सिंपली है, मेरे भाषा में मैं यही कहूंगा, जिसके थॉट्स हैं और जो लिखना जानता है वो ऑथर बन सकता है। जिसने अपने थॉट्स कलम पे लिख दिए, पेपर पर लिख दिए कलम से, और वो छप गए, वो ऑथर हो गया। हाँ, That's कलम that's why तो we should thank बिल्कुल टाइम Ankaksha लगता है, Miracles. टाइम लगता है ऑथर बहुत अच्छा बनने के लिए। कहते हैं ना, कलम पे हल्के हल्के धार आती है, चाकू पे भी धार हल्के हल्के आती है। हमारी भाषा में हमें हल्के हल्के सीखने को मिलता है, अनुभव एकदम नहीं आता कि आज हमने लिखा कल हमारा बहुत अच्छा हो गया। जब लगातार हम 8-10 आर्टिकल लिख लेते हैं, जब 20 आर्टिकल लिख लेंगे, जब आप 50 किताबें लिख लोगे, तब उसके बाद आप जिस दिन 50 किताबें आपकी पूरी हो जाएं, उस दिन पीछे मुड़ के एक बार अपना पहले 5 आर्टिकल देखना, तब महसूस होगा आपको कि आपने क्या लर्न किया और क्या सीखा और क्या गलतियां उस समय करी थी जो अब आप नहीं करते। लेकिन पहला कदम बिना उठाए दूसरा कदम आप नहीं उठा सकते, ये ब्रह्मांड का सत्य है। दोनों कदम एक साथ उठाएंगे तो मुंह के बल गिर जाएंगे। हम मेढक नहीं है जो छलांगे मार लें, या कंगारू नहीं है जो छलांगे मार लें। हम इंसान हैं, हम एक कदम उठा के ही दूसरा कदम उठाएंगे, और तभी हमारी तरक्की भी संभव है। लिखते On लिखते behalf एकदम of all कंटिन्यूअस that, थॉट आता है, लिखते लिखते कंटिन्यूअस थॉट आता है। आपको लगता है इस पैरा में ये भी जोड़ना है, ये भी जोड़ना है। मैंने एक बुक पे पहले लिखा था रफ ड्राफ्ट, उसके बाद जब मैं टाइप करती हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं सोची इतना सुंदर कैसे बन गया ये पैरा, तो बिल्कुल। ऑटोमेटिक और अपने आप फ्लो चल रहा है बिल्कुल। और सपना तुम्हारी थेरेपी हो गई, वो ग्राफोथेरेपी। मेरी ग्राफोथेरेपी भी हो गई, सब वो बुक में चला गया. सही में बुक में चला गया, इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया सारा। सबका भला हो गया। ओम नमः शिवाय सबसे बड़ा उपाय अपना जी किताब में लिख नहीं, जाए। really I'm feeling very happy and मतलब कुछ अलग ये तो फीलिंग है हमारी last पहले भी उस दिन time. भी हम मिले थे तो बात यही हुई थी, ये बोली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और Yes. फिजिकली भी इसने बोला था कि मुझे कुछ कुछ प्रॉब्लम भी हुई लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा था जब भी हम पर्सनली मिले थे लास्ट वीक, तभी भी मुझे बहुत अच्छा लगा था. मेरे को सबसे अच्छा लगा कि उनका रिग्रेट सॉल्व हो गया, जो बहुत मुश्किल काम होता है। हाँ, बुक Yes, लिखते yes. वक्त अगर रिग्रेट सॉल्व हो गया तो आई थिंक अचीवमेंट, ये बुक लिखने का पर्पज सर्व हो गया। मेरा सर्व हो गया अभी, Yes. और किसी, हाँ, नहीं, या साथ में हम लोग जुड़े हुए आपके, हम लोग जुड़े हुए तो हम लोग का भी सर्व हो गया। एक हमारे अच्छी साथी का अगर रिग्रेट सॉल्व हो गया लाइफ का बुक लिखते हुए, उससे अच्छी बात नहीं हो सकती। कोई बोल पाएगा, कोई नहीं बोल पाएगा, लेकिन अगर ये सॉल्व हो रहा है रिग्रेट, इट्स हैट्स ऑफ टू एवरीबॉडी। yeah. It will definitely solve. I think so with every one of us. Yeah, on behalf of Sapna, Madhu, and I don't remember his name. Just now, someone spoke. No, what's his name? Surana ji. Yeah. Surana ji. On behalf of everyone, I definitely, from the bottom of my heart, thank Abhishek sir and Ankaksha Miracles for opening this kind of a platform and making almost all those who are really innovative become highly creative. So those who I've been listening to, I tell you, Sapna, you can write, you have good thoughts. The way how you present it itself tells me that you can be a good writer. So why don't you start and
develop and join in a lot of times. So this is Sure, one of the sure. wonderful platform, I guess, where we can just bring out our thoughts, and then there'll be a release in our mind of that kind of a thing. So I really thank Abhishek sir and Rainu Mamtani for Even nice. Thank you, Yeah. sir. हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो आप हमें इस जिंदगी में मिले, यहाँ पर आए हमारे मकसद को पूरा मैं तो ये करने, कहूंगा हमारे कि लाइफ के पर्पस मेरे को। कुछ कर्म अच्छे थे जो आप सभी का एक साथ एक मंच पर मिलना हो गया। So you are purifying our minds and soul and heart and Seriously. ये वो last कर्मास के रिजल्ट है जो हम मिले हैं. We are souls, connected souls ना somewhere in last Right, life. right, तो हम एक जगह right. इकट्ठे हुए हैं. I So do there's believe that. something give and take is there, no? So we are giving what we have taken from him, no, Abhishek sir. Now we are returning it. अभिषेक सर, मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इतना ज्वलन सब्जेक्ट है ना ये, इसको जितनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके करिएगा सर, जितनी लोकल लैंग्वेज में। कोशिश पूरी करेंगे सर, कोशिश पूरी करेंगे, आप लोगों का साथ चाहिए खाली होगा इंग्लिश बस। से सबके पास पहुंचेगा नहीं ये सब्जेक्ट, क्योंकि आज के दिन ये सब, आज के जो बच्चे हैं ना सर, मैरिज को तो पता नहीं क्या समझते हाँ हैं। बिल्कुल 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 एग्जैक्टली, यही सोच के तो हम ये टॉपिक लेकर आए, यही सोच के, और इसीलिए लास्ट हमने करीब 5-7 मीटिंग कर ली, हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। जब फाइनली हमारा बुक कवर डिजाइन हो चुका, सब कुछ लगभग 50% काम डन हो चुका, तब आज हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि लोग समझें और हमको ज्वाइन करें इस किताब में लिखने के लिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। इससे पहले हमने रिकॉर्ड किया ही नहीं था, और अब बस बहुत जल्दी ही आप लोग लिखिए, किताब आए तो रीडर्स, जो बुक बॉम्ब्स हैं, रीडर्स हैं, सीकर्स हैं, वो किताब पढ़ें, और हम भी उनमें से एक हैं, हम भी किताब पढ़ेंगे। किताब पढ़ना तो बहुत जरूरी है। कोई और कुछ पूछना चाहता है या बताना चाहता है तो प्लीज बता सकते हैं। So, Sridham ji? are there any professional counselors who could counsel and bring two souls together in the society? Have you any idea? If that's not there, you try to bring them out, produce them. Couldn't get you. No, most of the time now I've been observing these young people, they get married, and in a year or in two, they start, kind of separating from each other, and then the concept of divorce would come in between. So are there some professional counselors who could, the family could take them there, and then after counseling, can they come back together and continue to live together? If that kind of an Yes. idea is there. Yes, Yeah. it could be the very good counselors, your parents. Yeah, After that, your family members. yeah, Then something only that, you should go the outside. Then only. yeah. प्रॉब्लम कहाँ होती है, हम पहले ही सारी बातें बाहर बता देते हैं और उसके बाद अपने घर का सारा कचरा कर लेते हैं। Yeah, पहले हम घर की प्रॉब्लम घर में ही सुधार लें, yeah, उसके बाद हम अपने किसी घर के बुजुर्ग से या अपने परिवार के किसी बुजुर्ग से हम बात करें। आजकल अगर हम देखें, हम बुजुर्गों की अवहेलना करना शुरू कर चुके हैं, बुजुर्गों को समझते ही नहीं है। सत्य बात ये है, आज की जनरेशन ओल्ड एज समझती है, उनको एक्सपीरियंस से नहीं लेती है। okay. अगर आप उनको एक्सपीरियंस से समझेंगे तो उनके पास वो सभी कुछ है जो आपके पास नहीं है। जिसके लिए आप फाइट कर रहे हो, वो सब कुछ वो छोड़ चुके हैं। अगर सही मायने में हम देखें, इसलिए कहते हैं ना, पुस्तक ही मित्र है। पुस्तक क्यों मित्र है? क्योंकि पुस्तक से पुराना कुछ है ही नहीं। आज भी हम गीता पढ़ते हैं, 5000 साल पुरानी पुस्तक है। हमारी एज इतनी नहीं है, लेकिन उस पुस्तक की एज इतनी है। रामचरितमानस आज भी हम पढ़ते हैं, हम सीखते हैं। जितनी भी किताबें हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, हजारों लाखों साल पुराने हैं, हम उनको पढ़ रहे हैं, उनसे हम सीख रहे हैं। वो भी तो हमारे पुस्तक हैं, वो भी तुम्हारे मित्र हैं, वो भी तुम्हारे बुजुर्ग हैं जो हमको आशीर्वाद और हमको जो ज्ञान दे रहे हैं, या हमारा ज्ञान बढ़ा रहे हैं, या हमको बचा रहे हैं। इसलिए विचार यही है कि हम पुस्तक के रूप में अगर हम कुछ देते हैं तो आगे आने वाली जनरेशन अपना भला कर पाएगी, उसको पढ़ के अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढ पाएगी। इस तरह की किताबें हम लाते रहेंगे, इस तरह की चीजें हम करते रहेंगे, है ना?
हाँ जी, कोई और कुछ बताना चाहता है या पूछना चाहता है तो प्लीज बता सकता है या डिस्कस कर सकते हैं। सर मैं कहना चाहूंगी, बताएं। एक जो मैंने पर्सनली प्रॉब्लम को नोटिस किया है वो ये है कि लोगों में खुद में भी कॉन्फिडेंस नहीं है और अपने घर वालों से बात करने की भी हिम्मत नहीं है, डेयरिंग नहीं है। अपने ही घर वालों से बात करने के लिए उनको 10 बार सोचना पड़ता है कि मैं बात करूं कि नहीं करूं, इसलिए वो बात ना बाहर चली जाती है। आजकल घर में ही कम्युनिकेशन सपोर्ट नहीं मिल पा ऑफ रहा। गैप, कम्युनिकेशन गैप। हाँ जी, हम बात करना, कम्युनिकेशन। हम सोशल मीडिया पर इतना बैठ चुके हैं कि हम फेसबुक या फ्रेंड पर विश्वास करते हैं, अपने साथ में घर में रहने वाले भाई बहन पर विश्वास नहीं करते हैं। नहीं करते, राइट। हम फेसबुक के 5,000 लाइक और अपने 10,000 फ्रेंड्स में बड़े खुश हैं, और हाँ अपने जी, घर के 2 भाई बहन, हमारे घर के 4 साथी, हम उनको देखना और उनसे बात करना पसंद नहीं करते। एक ही कमरे में 4 लोग बैठे होंगे और चारों अपना अपना फोन लेके बैठे होंगे, दुनिया से जुड़े होंगे और वहां पर डिस्कनेक्ट होंगे। हम्म, जब तक आप अपने घर में कनेक्ट रहेंगे तब तक आप दुनिया से डिस्कनेक्ट हो ही नहीं सकते, और जब आप अपने घर में डिस्कनेक्ट हो चुके हैं तो आप दुनिया से कनेक्ट करके कुछ नहीं कर लेंगे। बहुत कड़वा सच है, सुनने हाँ में जी। कड़वा लगेगा, मानने में बुरा लगेगा, लेकिन सुराना जी गलत कह रहा हूं तो बताएं। एकदम आप सही बात है। म्यूट नहीं, हैं। आजकल के जो बुजुर्ग या जो पेरेंट्स है ना सर, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। भाई तुम अपना डिसीजन खुद लो, वो बच्चे पे डाल देते हैं, और बिल्कुल बच्चों हाँ को जी। मैच्योरिटी नहीं है वो बिल्कुल, डिसीजन लेने की। वाइसा वर्सा होता है, अगर वो लोग क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ले लें, लेकिन होता है क्या, बच्चों को फोन पकड़ा दिया, हम्म, क्योंकि वो अपने फोन में बिजी हो चुके ना। उनने जहां देखा कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमें अपने फोन पे रील्स देखनी है, हमें अपने फोन पे चैटिंग महा चैटिंग करना है, करोड़ों का उलटफेर करना है अपने फोन पर, है ना, उसी में लाइक से करोड़ 10 करोड़ जो आते होंगे, भगवान भला करे उन सभी लोगों का। लेकिन वो क्या करा, तुरंत बच्चों को फोन पकड़ा दिया, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो। तो वहां पे वो डिस्कशन, इसलिए आजकल क्या हो रहा है ना कि चीजें, मैंने एक किताब लिखी भी, लास्ट ईयर लिखी थी, मोबाइल एडिक्शन के ऊपर। जिन बच्चों को मोबाइल एडिक्शन है, वो एडिक्शन कैसे निकाला जाए, उस पर भी किताब लिख चुका हूँ। नोशन प्रेस पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं मोबाइल एडिक्शन के लिए। उसमें बड़े पॉइंट्स दिए हैं कि किस तरह से मोबाइल एडिक्शन को हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मोबाइल एडिक्शन की बात नहीं हो रही है, हर तरह का एडिक्शन बात हो रही है। किसी भी चीज की अति है वो एडिक्शन है। हम्म, शौक पालो अच्छे, लिखने का पालो ना। अभी आज ही एक मुंशी प्रेमचंद को पढ़ रहे थे हम। मुंशी प्रेमचंद ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, जिस दिन मैं कुछ लिखूं नहीं, उस दिन मुझे रोटी खाने का हक नहीं। मुंशी प्रेमचंद की लाइन है। तो ये एडिक्शन पालो ना, ये वाला शौक पालो ना। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिस दिन हम पढ़ेंगे नहीं, उस दिन हमें सांस लेने का अधिकार नहीं। वो स्वाध्याय के महाभक्त थे, स्वाध्याय करते थे। उनको कहा जाता है कि एक बार जो किताब पढ़ लिया करते थे, उनको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी, याद हो जाता था। तो इस तरह का शौक पालो कि जहाँ पे आपका जो है, मतलब विकास हो, आपकी बुद्धि का विकास हो, वो ज्यादा अच्छा है ना। शौक पालो, जैसे हमारा शौक है लिखने का और लिखवाने का, पहले खुद लिखने की कोशिश करी, अब आप सबको इकट्ठा उठा लाए। और ये टारगेट हमारा, मेरा पर्सनल टारगेट बहुत लंबा है, कभी और डिस्कस करेंगे इस बारे में, ठीक है ना। तो एक्चुअली थ्योरी और प्रैक्टिस में थोड़ा सा गैप हो जाता है, बिल्कुल इन द सेंस कम्युनिकेशन गैप फैमिलीज में रहता है। जी हाँ, ओपन डिस्कशन नहीं होती है बिकॉज एल्डर्स थिंक कि हम जो बोल रहे हैं वी हैव मोर एक्सपीरियंस, सो व्हाट वी आर सेइंग हैज टू बी एक्सेप्टेड। तो इसलिए जब ओपन डिस्कशन नहीं होती है, इंस्टेड प्रॉब्लम ऑफ वही होती है। डायलॉग मोनोलॉग होता है, तो बिल्कुल that is why kids go to discuss outside, क्योंकि peers ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं rather than the family members. बिल्कुल If the discussions happen in the family, they don't need to go outside. बिल्कुल सही बात है। ढंग से डिस्कशन हो, ओपन डिस्कशन हो, परिवार में होना चाहिए। और दिव्या जी आप म्यूट पर हैं। ओके प्रमला जी, नो हाँ प्रॉब्लम, जी मैं सर, रिस्पॉन्ड कुछ कर कह रहा हूँ। रहे थे आप? हाँ, आप म्यूट पर थी, आप कुछ बोल रही थी। अरे सर, वो ओके मैं
एक ऑथर से ही बात कर रही थी, मतलब किसी अच्छा को अच्छा, कोई बोल बात रही नहीं, थी, कोई बात नहीं। मीटिंग के लिए प्रमिला बता जी रही कुछ थी। कुछ आप 2 मिनट ज्ञान दे दीजिए, उसके बाद जाइए। प्रमिला जी हाँ, हमें नॉर्वे से ज्वाइन करती एक्चुअली हैं। यहाँ पे धूप अगर वैसे तो है 23 डिग्रीज, बट जैसे कि 52 48 जैसा हीट होता है, क्योंकि यहाँ ओजोन लेयर डिप्लीटेड है ना, और मैं ओके समर से ओके। थोड़ी सन से थोड़ी सी एलर्जिक भी हूँ। खैर अच्छा अच्छा। मैं ये कहना चाहूंगी कि उसके बाद में साइन ऑफ करती हूँ, थोड़ा सा जी हाँ, आराम नो कर प्रॉब्लम, लेती नो हूँ बच्चों प्रॉब्लम, को। प्लीज। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक तो ये कि इंसान का इन जनरल किसी के साथ रहना, साथ में हस्बैंड हो या फ्रेंड्स हो या भाई बहन हो या मम्मी पापा हो, जो भी हो, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बिकॉज हम सभी एक इंडिपेंडेंट थॉट लेके आते हैं, और एक बाहर का इंसान जब आता है और उसके साथ आप एक पूरा जीवन बिताते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये नहीं है कि शादी मत करो, शादी एक बहुत ही सुंदर बंधन है। उसमें रह के आप जो चीजें सीखते हैं कि कैसे एडजस्ट करना होता है, कब कब एक बंदा गुस्सा करे तो आपको शांत रहना है, कब आप भी कुछ करें वो भी कुछ करे, घर की चीजों में हाथ बटाएं, कमाई में हाथ बटाएं, बच्चों को पालने में हाथ बटाएं। और बिल्कुल। लाइफ में हर एक जो 25-30 साल के एक्सपीरियंस है जिनको शादी में, जिनकी मेरा स्वयं का 20 इयर्स तो हो जाएगा इस साल। तो इट्स बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं लाइफ में, यू नो, विच इज लाइक हर बार लगता है कि अब निकल जाएं, यू नो, जस्ट मूव ऑन। पर ऐसे इतना आसान नहीं होता, बिकॉज कई बार क्या होता है कि इंसान स्टेगनेंसी में छोड़ना चाहता है कि कुछ है नहीं, लाइफ बहुत स्टेगनेंट हो गई है, यू नो, ऐसे। तो आई थिंक कि आपको सही मायने में सोचना है कि अ, ये फेज हर कोई इस फेज से गुजरता है। आपने जब फैसला लिया है शादी करनी है, तो उसको निभाएं और उसको आगे बढ़ाएं, यू नो। और शादी जो होता है, जैसे हम कहते हैं, एक्चुअली एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता। और वैसे भी हमारे इंडियन कल्चर में तो हम जानते हैं कि 7 7 जन्मों का बंधन है, और कई बार, और जब हम देखें तो ये कई जन्मों का भी होता है, यू नो। आप जब किसी से मिलते हैं, खासतौर से जिनके साथ आपकी शादी होती है, आई एम श्योर आपका प्रीवियस कनेक्शन रहा होगा, इसलिए आप साथ में आए। बट आई वुड से कि इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशन, ब्यूटीफुल बॉन्ड, और इसको बनाए रखें। और चैलेंजेस आते हैं, हर फेज में आएगा। अगर आप 80 तक जी रहे हैं, तो आपके हर 10 साल, 5 साल या 1 साल में आपके रिलेशन में चैलेंजेस आएंगे, और आपको कैसे उससे उभर के आना है, ये बहुत जरूरी। रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड की शादी का प्रॉब्लम चल रहा था, एंड आई वाज लाइक, मैंने तो कोई कोई कोर्स या कुछ किया नहीं है, बट आई वन टू गेट देम बैक टुगेदर। उनका ऑलमोस्ट डिवोर्स के कगार पे था, बट दे केम टुगेदर, एंड आई एम वेरी प्राउड अबाउट दैट कि मैं उन्हें मिला सकी। और उनका स्टेगनेंसी वाला प्रॉब्लम था, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, बट स्टेगनेंट। एंड दे आर ऑल्सो मैरिड फॉर अबाउट मे बी 15 इयर्स और समथिंग। तो फेजेस आते हैं, सबके लाइफ में आते हैं, यू नो। हमें उसे कैसे संभालना है और आगे बढ़ाना है, क्योंकि लाइफ यहाँ तक नहीं है और बहुत आगे है। बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपना अपना घर बसा लेंगे, हमें साथ में रहना कोई चाहिए जिंदगी में, यू नो। तो दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से कि खुश रहे। और विवाह एक बहुत सुंदर बंधन है, और हम सभी को इसका मतलब वी शुड गेट मैरिड। एवरी यंग किड्स हु आर लाइक, जो कह रहे हैं कि हमें शादी नहीं करनी चाहिए, शादी में क्या है, ये है वो है। और डिवोर्सेस भी ले तो बहुत सोच समझ के ले, इतनी आसान, इतनी बहुत बड़ी बात है डिवोर्स लेना, यू नो। अनलेस यू हैव अ जेन्युइन रीजन, जेन्युइन रीजन है तो जरूर मूव ऑन करें, उसमें ना रुकें। तो that's all I would like to finish off कि थैंक यू सो मच, it's a थैंक beautiful, यू प्रमिला जी, थैंक thank you. अच्छा, I'll sign off. Bye. Bye bye यू। ओके, everybody. नो प्रॉब्लम, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू एवरीवन।